everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm Sharon and today's video is for all of you 10th and 12th graders who are going to appear for their board examinations this season. I know board is just a month away and I'm in this video going to share all the tips and tricks that I know I have used that can help you get more than 95% easily. If you follow them, I swear to you, all these strategies, they will get you 95 above. I know this season बहुत ज़्यादा exam वाला है, pressure बहुत ज़्यादा है because I have lived it. So I'm not going to keep this video too long because I know you have to work, you have to study, and this is the month where it all matters. So I'm going to share all the tips and tricks that you're going to need to score the perfect score that you want. So why should you take advice from me, right? So 9th से लेके 10th grade तक I have always scored more than 95%. I've always been in the top percentile in my class, and I've also been my school's topper. I have PCM, I have science stream. So these are all the things that I used, and all of my friends who also scored equally good marks too. And these are tips that are going to definitely help you. I know many exams. So number one trick is to read NCERT. I know 1 month बचा है. If you have not yet started, then कोई भी extra book मत उठाओ. Doesn't matter, no publication, कोई भी मत लो. Just focus on your NCERT because CBSE में board exams के लिए the book that you really need is NCERT. उसको पढ़ो. अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट ट्राई कि जब तक बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं एटलीस्ट 2-3 बार एक चैप्टर अच्छे से रीड हो जाए, लाइक थरो रीडिंग. ऐसे जल्दी जल्दी नहीं, लाइक पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स, यू नो एवरीथिंग कि उस बुक में क्या है. अगर आपने पहले ही पढ़ा है, इवन देन ट्राई कि 3 से 4 बार और 2 से 3 बार टाइम को देखते हुए यू एटलीस्ट रीड ईच एंड एवरी चैप्टर इन ईच सब्जेक्ट, बिकॉज हर एक सब्जेक्ट की वेटेज इक्वली इतनी इंपॉर्टेंट है. अनदर थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. So second point यहाँ पे है कि questions, index questions and the back exercise questions, these little things are the only one that make a difference. Most of the times हम chapter read करके end question नहीं देखते हैं, लिखवा के ले लो. बोर्ड में 30-40% जो एग्जाम होता है वो इंडेक्स क्वेश्चन एंड बैक क्वेश्चन से आता है. एंड साइंस में, सोशल स्टडीज़ में, इंग्लिश में, हिंदी में बैक में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं हर चैप्टर के एंड पे एंड जो इंडेक्स क्वेश्चंस होते हैं, मेक श्योर यू रीड देम, मेक श्योर यू सॉल्व ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. Extra books मत लो. If you solve them, you will be, enough prepared to go for your exam. And कई बार, कितनी बार हुआ है बोर्ड में, if you see कि exact same question without changing the numerical value वही same exam में आया है. So this is for both 10th and 12th graders. Doesn't matter. Strategy always remains the same. Now the third point that we are going to talk about is all the extra books. Now if you have been preparing for too long and you feel like आपको कोई extra book लेनी है तो कौन सी recommend, में कौन सी आपको चाहिए होगी. The book that I'm going to recommend you is the one that CBSE also recommends. So it's the Exemplar. आपको वो Exemplar के अलावा और कुछ नहीं उठाना है. मेरे पास भी बहुत सारी बुक्स थी बट जिनसे मैंने मोस्टली स्टडी की वो थी NCERT. लाइक मेरा तो ऐसा हो गया था कि एग्जाम के एंड तक आते आते मैंने मैथ्स में जो चैप्टर्स थे वो 10 to 12 टाइम्स तो कर ही लिए थे कि एक महीने में एटलीस्ट मैं एक चैप्टर को 2 बार कर लेती थी कि बोर्ड तक पहुँचते पहुँचते मैंने हर एक चैप्टर अराउंड 7-8 टाइम्स, को चैप्टर नया नया वो तो 3 to 4 टाइम्स एटलीस्ट और मैक्सिमम 10 to 12 टाइम्स रीड किया हुआ था हर सब्जेक्ट में. सो मुझे वो प्रॉब्लम कभी आई नहीं. So the extra books that I'm going to recommend to you guys is only Exemplar. Maths में you can go for RS अग्रवाल के examples क्योंकि टाइम बहुत कम है and Exemplar. Science में you can definitely go for Exemplar क्योंकि उसमें काफ़ी सारे questions होते हैं. If you're done with reading your NCERT की books and you're prepared enough, आपने back question कर लिए, now you try the Exemplar questions because उसमें काफ़ी अच्छे questions होते हैं. English and Hindi are equally important subjects. I got 99 out of 100 in English. So I'm going to tell you कि English के लिए कैसे prepare करना है. In language subject text में क्या होता है, either you hit it or you lose it all. The fourth tip is the one that makes all the difference. The most important tip, and लिखवा लो, इससे important I guess कुछ नहीं है. This is solving your sample question. Solving your sample question papers. बहुत questions आते हैं कि sample paper कहाँ से करें, कौन सी publication की book उठाएं, कौन सी site पे जाएं. It's very easy. Even CBSE की board की site पे they even give you sample question papers. So all you have to do is उनकी साइट से उठाओ या किसी ऑनलाइन साइट से उठाओ, कोई भी ऐप डाउनलोड करो. यू जस्ट नीड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स. या तो चैप्टर वाइज करो या सब्जेक्ट वाइज, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट्स ऑफ इट ताकि आपको वीडियो हो करने क्यों है. यू हैव रेड योर NCERT, एक्स्ट्रा बुक भी नहीं उठाई. मैंने आई रिमेंबर फॉर माई 12th ऑल्सो आई डिड मोर देन 800 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फॉर ईच चैप्टर, एक एक चैप्टर के लिए. एंड आफ्टर दैट आई वॉज सो प्रिपेयर्ड कि मेरे को पता था कि क्या क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड में. मुझे उसका आंसर पहले से पता था कि मुझे बस ये आंसर तक डिराइव करनी है अपनी इक्वेशन को. So 10th में remember I got full in maths, so it was 100 out of 100. Now उस मैथ्स के पेपर में मेरा 2020 में हुआ था 10th का, एंड वो कोविड से पहले हमारे एग्जाम्स हो चुके थे.
एंड आई रिमेंबर कि मेरे को लिटरली हर एक क्वेश्चन का आंसर पहले ही पता था. अनदर ट्रिक इज यू डू द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स. बोर्ड में 80% पेपर सैम्पल क्वेश्चन पेपर से ही आता है. कहाँ से कौन से सैम्पल पेपर लें? 2014 से लेकर 22 तक के सारे कर लो. इट इज़ वेरी सिंपल बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेटिव ही होंगे, वो रिपीट हो रहे हैं. सो यू डू नॉट इवन हैव टू पुट इतना ज़्यादा ध्यान. आपने पढ़ लिया, नाउ यू नो क्या क्वेश्चन कर रहे हो. जो भी टॉपिक ना आए उसे साइड में रख दो फॉर रिविजन. इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी एंड यू आर डूइंग द क्वेश्चन जो एक्चुअली बोर्ड में आने वाले हैं, क्योंकि सैम्पल पेपर से ही मोस्टली एग्जाम बनता है. फनी स्टोरी इज मेरा इंग्लिश का पेपर था. आई वॉज वेरी स्ट्रेस की मार्किंग स्कीम कैसी होगी, क्या लिखना होगा. मैंने लास्ट नाइट में जो बोर्ड के एग्जाम के पहले लास्ट नाइट थी, आई ओनली रेड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फॉर रिविजन एंड यू वोंट बिलीव इट. अगले दिन एग्जाम में बैठते वक्त 3 से 4 क्वेश्चन लिटरेचर में एग्जैक्ट सेम आए थे और मुझे उनके मार्किंग स्कीम पता थी. आई न्यू व्हाट टू राइट, व्हाट पॉइंट्स टू इंक्लूड. सो इट वाज अ वेरी मैजिकल मोमेंट इन माय लाइफ एंड आई गॉट 99 मेरे इंग्लिश में आए थे. सो इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ दीज ट्रिक्स. सो आई थिंक सैम्पल पेपर से बेटर कुछ नहीं है. जहाँ मिले जो मिले करो. Now with this I'm going to tell you a 5th most important tip. Now this tip is actually for the sample paper question, जो बहुत कम लोग करते हैं. मैंने ये ट्रिक एक्चुअली पढ़ते पढ़ते I did this and it was the most helpful one. Now करना क्या है कि आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो. आपने 10 दिन इनके छोड़ के सैम्पल पेपर्स के लिए क्या हम ट्राई करते हैं, देखते हैं मैं आता कितना है. सैम्पल पेपर्स करते टाइम जो भी क्वेश्चन आपको ना आए, यूर लाइक कि ओके ये मुझे स्ट्राइक नहीं हो रहा, उस क्वेश्चन को उसके आंसर के साथ शॉर्ट फॉर्म में एक नोटबुक बना लो और उसमें लिख दो. एटलीस्ट जो छोटे छोटे पॉइंटर्स लिख दो कि अगर आपको कोई चीज़ फर्स्ट टाइम स्ट्राइक नहीं कर रही, मतलब वो यहाँ पे भी नहीं है. अगर आपसे क्वेश्चन हो रहा है तो आप करते जाओ, जो नहीं हो रहा उसे लिख दो पेपर से पहले. एंड सारे सैम्पल पेपर करने के बाद यू ट्वाइस रिवाइज दोज पॉइंटर्स, बिकॉज वो पॉइंटर्स आपको नहीं आते हैं, बाकी आपको आ रहा है जो आप कर रहे हो. जो भी ना आए, राइट इट डाउन अ सेपरेट नोटबुक, डू इट अगेन, बिकॉज वो है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो पॉइंट्स जहाँ पे आपको फोकस करने की जरूरत है. एंड विद दीज टिप्स आई कैन अश्योर यू 10th 12th में इट इज नॉट डिफिकल्ट टू गेट मोर देन 95%. इट इज वेरी इजी इफ यू डू द राइट थिंग्स at the right time and in the right way. I'm going to tell you the last most important tip, that is practicing the school question papers. हम स्कूल में पेपर देते हैं, स्कूल बोर्ड क्लासेस में मैक्सिमम एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं. क्लास टेस्ट हो गए, मिड टर्म हो गए, सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स हो गए. कलेक्ट ऑल दोज पेपर्स एंड डू देम. नाउ आपको आंसर शीट भी मिलती है स्कूल से. यू ओपन योर आंसर शीट, नाउ यू चेक आपको कौन सा क्वेश्चन आता था, कौन सा नहीं आता था. जो आता था वो भी पढ़ो कि उसमें ऐसा क्या लिखा है कि फुल मार्क्स मिले. जो नहीं आता था उसे देखो कि उसमें क्या नहीं लिखा, क्या नहीं आता था. एंड अब देखो आपको क्वेश्चन अब भी आता है या नहीं आता. सब कुछ पढ़ने के बाद नहीं आता तो री रिवाइज करो. एंड स्पेशली हिंदी और इंग्लिश के एग्जाम्स में और साइंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी गलतियां देखो. उस एग्जाम में, स्कूल पेपर एग्जाम में आपने गलतियां कहाँ की. आई नो बिल्कुल मन नहीं करता अपने पुराने क्वेश्चंस को वापस जाके देखने का, गलतियां पढ़ने का, बट इट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इम्प्रूव योरसेल्फ. हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, एज यू वेल नो. तो उन क्वेश्चंस को रिविजिट करो, देखो हिंदी इंग्लिश में कहाँ पे क्या मात्राओं की, क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक आप यूजुअली कर रहे हो, या फिर साइंस के एग्जाम में देखो कि कहाँ पे क्या डायग्राम नहीं बनाया, कौन सा क्वेश्चन सही से नहीं किया, या फिर कहाँ पे मार्क्स कट गए, कहाँ पे ज़्यादा लिखा है, कहाँ पे कम लिखा है, कहाँ पे हैंड राइटिंग की इंप्रूवमेंट चाहिए, या फिर कहाँ पे कुछ भी मतलब मैथ्स में 2 गिवन इक्वेशन सही से नहीं बनाई है. यू चेक ऑल ऑफ दैट, यू सी कि आपकी गलतियों का पॉइंट कहाँ पे. बिकॉज इस एग्जाम में सिली मिस्टेक्स के हम स्कोप क्यों छोड़ रहे हैं. व्हाई डू वी गिव द एग्जामिनर चांस टू कट आवर मार्क्स एट जस्ट टाइनी सिली पॉइंट्स. तो मेक श्योर कि एंड तक आते आते you are well rounded. आपने सब कुछ देख लिया है and just trust the process then. These were all the points that you need to follow to get the desired scores. Now let's just summarize them quickly, everything we discussed in this video. Number 1 point is read your NCERT book. It's like a god to you at this point for your CBSE exams. Read it 2 to 3 times at least before appearing for your board exams. Another main point is to the back exercise questions and the index questions. They are very important to you, they matter the most. Okay, so don't forget and don't skip them. Do each and every question at least once or twice. And for the extra books I would like to recommend you Examplar and RS. अगर आपके पास टाइम, अगर टाइम नहीं है, directly skip to the 4th most important point, that is the sample question papers. Yes, sample question papers are the most important as we have discussed. And जहाँ पे भी मिले उन्हें ढूंढो, उन्हें करो. And generally speaking 100 से 200 क्वेश्चंस के बाद ना you'll form a rhythm.
इवन मुझे 800 क्वेश्चंस मैंने किए थे एक सब्जेक्ट के लिए, चैप्टर के लिए. मुझे आई जस्ट फेल्ट लाइक आई एम द एग्जामिनर. मुझे मार्किंग स्कीम के बारे में इतना पता था. आई कुड जस्ट सिंपली सी थ्रू कि बोर्ड एग्जाम्स कैसे क्रिएट करता है क्वेश्चंस, कि बोर्ड के क्वेश्चंस किस टाइप से फ्रेम होते हैं, उनकी मार्किंग स्कीम क्या होती है, एंड वो कैसे ऑपरेट करता है, वो कैसे चेक करता है एग्जामिनर. सो एट सम पॉइंट आई फेल्ट लाइक आई एम एन एग्जामिनर. सो if you read them thoroughly, if you will just feel like an examiner yourself. You will see कि उनका point कहाँ से और कहाँ से आ रहा है, how you have to prepare for it. Next most important point is re-revising your school के questions and अपनी गलतियों से सीखना. Revisit those mistakes and make sure you do not repeat them in your exam. Okay. And I wish you all the best. Please do not take any stress. That's the most important thing. If you have not really started yet, then this is the high time you really start working. If you have been working hard, then I can guarantee you, if you follow these steps and if you do the right thing, then you will surely get a desired scores. Don't be stressed. This is the season where you have to perform your best and you cannot do it while you're super stressed. So thank you so much everyone for watching this video. If you have any question, any doubt in any subject, or you cannot find certain answer to certain questions, you cannot see clarity in some subjects, or you feel like कि आपको किस subject में जानना है, कुछ पूछना है, then go to the comments below. Section below and write down your questions. I'm going to leave my email address in the description box below. So if you have anything you need to ask me, then definitely please go ahead and ask me. I would love to answer your questions. I would love to help you. Either you're a 10th grader or a 12th grader. And I'll also provide my test scores that I got in my 10th and 12th. So maybe subject wise, if you need any help, I would be willing to help you. And yes, ये वीडियो जो थी ये मेरी around 5 to 6 years की मेहनत थी, क्योंकि ये सारे स्टेप्स मैंने इन सभी क्लासेस में फॉलो किए हैं. एंड आई हैव ऑलवेज रिसीव्ड रियली गुड स्कोर्स, टच वुड. एंड आई एम पासिंग ऑन these special tricks and tips I guess I had to you. So make sure you use them, make sure you do well. So thank you so much for watching. In case you need my help, I'm right there in the comment section to help you, or even you can just bombard my email address. Like this video, then make sure you give it a thumbs up and share it with your friends who are in 10th or 12th grade, who might need these tips, who might feel stressed right now, pressurized right now. So I think they might need, a little boost video, because this season is very stressful one, and I think the right direction is what really matters. Thank you so much for watching. I wish you all the best. And if you like the video, then make sure you subscribe to my channel. It really keep me motivated. But still, I love creating content, and especially educational content where I can help you guys. So I would still continue making that video.